Hello, friends and students. Myself, Birendra Singh, your English educator. Once again, I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today, I have come with a new topic, and this is the discussion of the third chapter entitled The Passing Away of Bapu by Nayantara Sehgal from Class 10, West Bengal Board of Secondary Education. First of all, I'll read the text in English and then after I'll discuss its Hindi meaning, and afterwards I'll solve the exercise as well. In this video, I'm going to deal with Unit 1 of this chapter. So let's read the chapter first. Unit 1, The Passing Away of Bapu. I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. At the Birla House, Gandhiji's relatives and followers had gathered around his body. There was silence in the room as Gandhiji breathed his last. Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind. Sad groups of men and women had collected around Birla House. Out of every window one could see a brown blur of faces. They did not make a sound. There was an unnatural silence. It was as if time stood still for those few minutes. The people were too stunned to speak in the beginning. Later, they clamored wildly, shouting and crying. They jostled one another in a stampede to break into the house. They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, "What will become of me now that he has left me?" This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people. They looked like lost children. It was the question in many of our hearts as we sat still, shocked and unbelieving. We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. So far, we have studied Unit 1 of the chapter. Now let's move towards the Hindi translation of this unit. अभी तक हमने इस चैप्टर के यूनिट 1 को पढ़ा, जिसके मुताबिक नयनतारा सहगल, जो कि लेखिका है इस चैप्टर की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को और अपने मेमोरी को, अपनी याददाश्त को शेयर किया है इस कहानी के माध्यम से। वो कहती है कि 1948 को 30 जनवरी 1948 को वो अपने घर पर चाय पी रही थी। ठीक तभी उन्हें अर्जेंट टेलीफोन आया और कहा गया कि आप बिरला हाउस पहुंचिए। उन्हें ये पता चला कि गांधी जी को गोली लगी है। किसी नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी है। यह सुनकर लेखिका नयनतारा सहगल शॉक्ड हो जाती है, काफी हतोत्साहित हो जाती है। वो अपने कार में बैठकर बिरला हाउस की तरफ चल पड़ती है। बिरला हाउस में गांधी जी के जो अपने रिलेटिव्स थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, वो उनके बॉडी के चारों ओर बैठे हुए थे और वहां पर एक अजीब सी निस्तब्धता थी। सभी कोई साइलेंट थे। एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांधी जी अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। गांधी जी के मृत्यु की खबर, उनकी हत्या के बारे में समाचार आग की तरह दिल्ली की गलियों में फैल चुकी थी और दुखी लोगों का समूह बिरला हाउस के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा था।
हर विंडो से, हर खिड़की से आप लोगों के चेहरों को देख सकते थे। आप ये देख सकते थे उस समय कि लोग कितने दुखी थे। वो जरा भी आवाज नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज ही चली गई हो इस दुखमय समाचार के साथ। चारों तरफ एक अजीब सी निस्तब्ध वातावरण का माहौल था और कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय जो है वो थम सा गया है। लोग शुरुआत में तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, वो स्पीचलेस थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुदन आरंभ हो गया। वो रोना धोना आरंभ कर दिए। वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए बिरला हाउस में अंदर जाना चाहते थे ताकि वो बापू की एक झलक को पा सके। उन लोगों को तब जाकर शांत किया जा सका जब ये घोषणा हुई कि सभी को गांधी जी की अंतिम क्रियाक्रम के पहले उनका दर्शन करने को मिलेगा। जब किसी का कोई नियर एंड डियर वन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब वह आर्तनाद करता है, तब वह शोक मनाता है। और ऐसे ही शोकमय ध्वनि के साथ किसी ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, बापू हमें छोड़कर चले गए हैं। शायद यही सवाल सभी के दिमाग में चल रहा था। ये शोकमय लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सारे के सारे अनाथ हो गए हों और सभी के हृदय में एक ही सवाल था कि क्या ये मैं विश्वास करूं कि गांधी जी यानी हमारे बापू हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट में सुना, रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये कहा गया कि बापू हमारे बीच नहीं रहे। लोग भारी मन से इस आकाशवाणी को सुन रहे थे और इस प्रकार से द पासिंग अवे ऑफ बापू नामक चैप्टर का यूनिट 1 खत्म होता है। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो भी प्रश्नोत्तर दिया हुआ है उसे मैंने सॉल्व करके उसका फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे पॉज करके देख लें और अपने अपने बुक्स में एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। अगर कहीं आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for observing my channel and this video, and please like, share and subscribe, and do visit my channel once again for further knowledge and information. Thank you.